बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द हार्ट विच इज़ नोन एज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इस लेक्चर में हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके पंपिंग एक्शन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हार्ट is the pumping organ of the body located in the chest cavity enclosed in double membranous sac, the pericardial cavity. In the diagram you can see that it is enclosed in a sac. This is pericardium. Pericardium encloses a potential cavity that is known as the pericardial cavity. In the pericardial cavity is present the pericardial fluid, and pericardium protects heart from overextension. Layers of the heart walls. Wall of the heart has three layers. Epicardium is the outermost, endocardium is the innermost layer, and myocardium is in between the endocardium and the epicardium. Myocardium is the thickest layer and it has special type of muscles that are cardiac muscles. एपिकार्डियम से आउटसाइड आप देखें ये पेरिकार्डियम है या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स हैं बाहर। पेरिकार्डियम में फर्दर आ जाता है फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हैं, आगे पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम और विजरल लेयर ऑफ सीरस एपिकार्डियम। विजरल लेयर जो होती है वो टाइटली इनक्लोज कर रही होती है हार्ट को, और जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है वो पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम और विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम के दरमियान होती है। आगे हम लोग देखते हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो स्केलेटल मसल की तरह ही होता है, वैसे ए बैंड आई बैंड वगैरह। कार्डियक मसल में क्या होता है, सेल जंक्शंस होते हैं। सक्सेसिव सेल्स आर कनेक्टेड बाय इंटरकलेटेड डिस्क। इन जंक्शंस को इंटरकलेटेड डिस्क भी कहा जाता है और ये ब्रांच्ड होते हैं। स्केलेटल मसल आपने पढ़ा था कि ब्रांच नहीं होते। Anatomy of the heart. Heart has four chambers, two atria and two ventricles. You can see in the diagram, this is right atrium, this is right ventricle, this is left atrium and this is left ventricle. Both the atria are thin walled as compared to the ventricles, and ventricles are thick walled. The vessels that open into the heart or originate from the heart can also be seen in this diagram. This is superior vena cava, this is inferior vena cava. Both these vena cava open into the right atrium. This is pulmonary trunk arising from the right ventricle. Pulmonary trunk further divides into pulmonary arteries. I'll tell you about that later. और ये लेफ्ट एट्रियम में जो आती हैं पल्मोनरी वेन्स आती हैं दोनों लंग्स से, वो लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होती है एओर्टा, जो कि ब्लड सप्लाई करती है पूरी बॉडी को। हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो एओर्टा के जरिए ही निकलता है। आगे हम लोग फर्दर एनाटॉमिकल फीचर्स देखते हैं हार्ट के। दिस इज सुपीरियर वेना केवा, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज इंफीरियर वेना केवा। both these vena cava open into the right atrium. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a tricuspid valve. Tricuspid का मतलब है कि इसके तीन फ्लैप्स होते हैं और तीनों फ्लैप्स जो होते हैं फाइब्रस कॉर्ड्स के जरिए वेंट्रिकल की वॉल्स पे प्रोजेक्शंस होती हैं पेपिलरी मसल्स, उनसे अटैच होते हैं। दीज आर कॉर्डी टेंडिनी, द फाइब्रस कॉर्ड्स विच आर अटैच टू द फ्लैप्स ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व. These are chordae tendineae and they are attached to the papillary muscles. These are the papillary muscles. From right ventricle, there arises pulmonary trunk. Pulmonary trunk is guarded by semilunar wall. Semilunar means resembling the shape of the moon. This is pulmonary semilunar wall. Pulmonary trunk divides into left pulmonary artery and right pulmonary artery. Both these arteries carry deoxygenated blood to the lungs. Left pulmonary artery to the left lung and right pulmonary artery to the right lung. जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं हार्ट से ब्लड को पेरिफेरी की तरफ लेके जाती हैं और सब आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज वाहिद आर्टरीज हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में लेके जाएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिटर्न होगा हार्ट की तरफ वो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए होगा। दो पल्मोनरी वेन्स आती हैं दोनों लंग्स की तरफ से, लेफ़्ट की तरफ से भी दो आती हैं और राइट की तरफ से भी दो आती हैं। ये राइट पल्मोनरी वेन्स है। ये चारों पल्मोनरी वेन्स आके लेफ़्ट एट्रियम में ओपन होती हैं
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। बाकी बॉडी की तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है इन पल्मोनरी आर्टरीज और वेन के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो ओपनिंग है, इट इज़ गार्डेड बाय अ बाइकस्पिड वॉल, इट हैज़ 2 लीफलेट्स और 2 फ्लैप्स। ये बाइकस्पिड वॉल को मिट्रल वॉल भी कहते हैं। साथ वाल राइट साइड पे जो डायग्राम है वो भी आप देख सकते हैं, 2 फ्लैप्स हैं इसके। ये कॉडी टेंडनी वैसे ही, और ये नीचे पेपिलरी मसल्स के साथ जाके अटैच होते हैं। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होती है, फिर अयोटा जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आगे पूरी बॉडी में। आगे पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट हम लोग देखते हैं। राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा दोनों ओपन होती हैं राइट एट्रिया में। सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम हेड एंड नेक एंड बोथ द लिम्स, अपर लिम्स। इन्फीरियर वेना केवा जो ब्लड लाती है डीऑक्सीजनेटेड, वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लाती है। और ये बनती कैसी है, आइलिक वेन्स जो होती हैं जो ड्रेन कर रही होती हैं बोथ द लेग्स को, वो यूनाइट करती हैं, इन्फीरियर वेना केवा बनता है फिर। और while traveling towards the heart it receives renal veins and hepatic vein. Blood is pumped out of the heart via pulmonary trunk towards the lungs and aorta to the body. तो इस तरह से हार्ट एक डबल पंपिंग एक्शन परफॉर्म करता है। ये टुवर्ड्स लंग्स भी पंप कर रहा होता है हार्ट को, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और टुवर्ड्स द बॉडी भी कर रहा होता है एओर्टा के ज़रिए, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आगे इस डायग्राम में एरोस के ज़रिए आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हार्ट में ब्लड आ कहाँ से रहा है, कहाँ जा रहा है। सबसे पहले आएगा राइट एट्रियम में वाय सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। वहाँ से जब कॉन्ट्रैक्शन होगी राइट एट्रियम की, तो ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा और राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू बोथ द पल्मोनरी आर्टरीज, देन टुवर्ड्स लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए द ब्लड विल रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और वहाँ से फिर एओर्टा के ज़रिए चला जाएगा हार्ट से बाहर। अच्छा, पल्मोनरी और एओर्टिक जो वेसल्स हैं इनको भी गार्ड कर रही होती हैं, वॉल्स गार्ड कर रहे होते हैं इन्हें, और वो होते हैं सेमिल्यूनर वॉल्स, लाइक दे रिजेंबल द मून। मून की तरह की इनकी शेप होती है। आगे हमने देखा कि एओर्टा के ज़रिए हार्ट से ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड। आगे एओर्टा मेजर ब्रांचेस देती है जो कि पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं, ब्लड करती हैं सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। तो ब्रांचेस ऑफ एओर्टा कौन सी होती हैं? सबसे पहले जी निकलती हैं कोरोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। देख सकते हैं आप डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रही हैं सारी ब्रांचेस। कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट को ही सप्लाई करती हैं। और ब्रेकियस, उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा आता है हमारे पास, उससे 3 मेन ब्रांचेस निकलती हैं। एक है जी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, दूसरी है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और तीसरी है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है वो आगे जाके फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये वाली, और दूसरी है राइट कॉमन कैरोटिड। राइट कॉमन कैरोटिड जाती है राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक को सप्लाई करती है ऊपर, और जो हमारे पास है राइट सबक्लेवियन आर्टरी वो जाके पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, राइट अपर लिम्ब को। दूसरी जो ब्रांच है हमारे पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड सप्लाई द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक। और जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है तीसरी ब्रांच आर्च ऑफ एओर्टा से, वो जाके सप्लाई करती है लेफ्ट अपर लिम्ब को। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं BCS। बी से ब्रेकियोसेफेलिक, सी से कॉमन कैरोटिड लेफ्ट, और एस से सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद जो ब्रांचेस जाती हैं एओर्टा से वो ब्रांचेस टू द चेस्ट वॉल जाती हैं। नीचे आ जाएं तो अब्डोमिनल विजरा को ब्रांचेस जाती हैं एओर्टा से। तो ये सीलियक ट्रंक जो है वो भी अब्डोमिनल विजरा को सप्लाई कर रही है। उसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज, रेनल आर्टरीज टू द किडनीज, गोनेडल आर्टरीज टू द गोनेड्स। और उसके बाद जो आ जाती हैं नीचे एओर्टा, अब्डोमिनल एओर्टा जो कहलाती है, वो आके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन आइलिक आर्टरीज। एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। ये
राइट कॉमन आइलियक आर्टरी और लेफ़्ट कॉमन आइलियक आर्टरी। राइट जो होती है वो राइट लेग को और राइट लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट साइड को। इस तरह से एओर्टा की ब्रांचेस के ज़रिए पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है और जो कोरेस्पॉन्डिंग वेन्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट। वो सारी वेन्स आके ड्रेन अपर पार्ट से ड्रेन होती हैं सुपीरियर वेना केवा में, जो हम पीछे देख के आए हैं, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इन्फीरियर वेना केवा में ओपन होती हैं और दोनों वेना केवा ओपन हो जाती हैं राइट एट्रियम में, और फिर उसी तरह से साइकिल चलता है जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।